Good morning, dear students. Today we will discuss about the management of preterm, as we have discussed about the clinical features of preterm as well as its physiological handicaps in a previous lecture. Today we will discuss how to manage a preterm. Before management, we all know that prevention is better than cure. So first management is prevention. First of all, in prevention, we should identify the high risk mothers which are going to have a premature labor. We should identify these females and we should shift them or refer them to appropriate healthcare facility where the facility is equipped with the good quality neonatal care. Because mother is the best um, transport incubator. If suppose we deliver a baby, premature baby in a healthcare facility where there is no equipments or no manpower to manage that particular preterm baby, then we have to transport the preterm to secondary or tertiary care level center, and to transport such type of baby it is very difficult because they are at a high risk of developing hypothermia. That's why we should identify or mark the high risk mothers, and we should refer them for the confinement to an appropriate health facility where their premature babies can be handled. And referring before delivering a lady is better because uterus is the best incubator in the world. And then in prevention, first thing is that we should arrest a premature labor. If there is premature labor, we should try to arrest the labor so that we prevent preterm baby to get delivered. In prevention of or arresting the premature labor, the various procedures we have, we can adopt complete bed rest to the lady, and we can sedate the prospective mother. Then other methods beyond rest and sedation are some tocolytic agents. We usually use some of the medicines as tocolytic agent which suppress labor, which relax uterine muscles, or which by any means avoid labor pains or labor this muscle contractions of the uterus. And in these tocolytic agents, most commonly used are beta these adrenergic drugs, beta 2 adrenergic drugs, which are sympathomimetic drugs, and they are most commonly used because beta 2 receptors are present over uterine muscles, and if we use beta adrenergic drugs, these receptors are stimulated, which relax uterine muscles. And in these beta adrenergic drugs, I have mentioned three drugs here. Isoxaprine is one of the most commonest used. However, it is not a selective beta 2 agonist, but it is one of the most commonest used drug. Other are terbutaline and ritodrine. I am not going into the dose and schedule because it is a matter of obstetrics. Then other agents which may be used as tocolytic agents, or which are used to suppress labor pains, or which are used to relax uterine muscles during a premature labor. They are magnesium sulfate. Magnesium sulfate is nowadays very often used to avoid labor pain, but magnesium sulfate may be used cautiously because magnesium sulfate is known to have respiratory depressive effect over neonate. If we use magnesium sulfate, then there are high risk of developing respiratory this depression, respiratory distress syndrome in the newborn. However, some studies show that use of magnesium sulfate may reduce the risk of intraventricular hemorrhage and further cerebral palsy and mental retardation.
Other drug which may be used is indomethacin. Indomethacin, basically we use indomethacin as a painkiller, but indomethacin basically is a prostaglandin synthetase inhibitor, and it inhibits secretions of the or this production of the prostaglandins, and that's why it reduces the uterine contraction. However, it also may cause premature closure of this ductus arteriosus, and it is the only drug which is used in PDA, that patent ductus arteriosus in preterms. अगर जैसे बच्चा हमने बात करी थी हैंडीकैप में, CBS के हैंडीकैप्स में, वन ऑफ द कॉमनेस्ट जो CBS हैंडीकैप रिटर्म्स में होता है इट इज़ this PDA, and PDA को ट्रीट करने के लिए we use indomethacin, and when indomethacin is used in prospective mother, then it can close ductus arteriosus of the fetus in utero and can cause various problems. तो indomethacin जो है cautiously use की जानी चाहिए. So these are some drugs which can be used as a tocolytic agents to abort the labor pains. And if we are able to succeed postpone the labor for at least 2 days, 36 to 48 hours, अगर हम जो है उसको postpone कर सकते हैं, then we can use antenatal corticosteroid. And use of this antenatal corticosteroid is the most cost effective perinatal strategy, which can reduce the neonatal mortality up to 40%. Use of this antenatal corticosteroid in mother can reduce neonatal mortality up to 40%, and it can reduce the incidence of this RDS, that respiratory distress syndrome, up to 50%. तो होता क्या है कि corticosteroid क्या करते हैं, if we give these corticosteroids to the mother at least 2 days before this delivery labor, then it enhances fetal lung maturity, and this enhanced fetal lung maturity से हमको क्या मिलता है कि RDS के चांसेस कम हो जाते हैं, और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस रिलेटेड और रिसोसिटेशन रिलेटेड डेथ्स जो हैं हम प्रिवेंट कर सकते हैं. और जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो स्टेरॉइड्स हैं, दे आर बीटामिथाजोन जो है 12 मिलीग्राम IM वंस डेली फॉर 2 डेज हम देते हैं, 2 डोजेज हम देते हैं, या फिर डेक्सामिथाजोन जो है 12 आवरली हम 6 mg देते हैं IM फॉर 4 डोजेज, दैट इज़ 2 दिन देना है, चाहे बीटामिथाजोन है चाहे डेक्सामिथाजोन है. बीटामिथाजोन दिन का 1 बार देना है, डेक्सामिथाजोन दिन में 2 बार दे सकते हैं, कोई एक हम यूज़ करते हैं. यूजली बीटामिथाजोन इज़ मोर इफेक्टिव दैन डेक्सामिथाजोन. और अगर 1 हफ्ते से ज़्यादा जो है हो गया तो वी कैन रिपीट दीज डोजेज आफ्टर 1 वीक, एंड दे आर नोन टू इंड्यूस फिटल लंग मैच्योरिटी. और अगर फिटल लंग मैच्योर हो जाते हैं तो देर विल बी रिड्यूस्ड चांसेस ऑफ दिस रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम. देन कमिंग टू द मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट में सबसे पहले जब प्रीटर्म आया है, फर्स्ट मैनेजमेंट इज मैनेजमेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ. और एट द टाइम ऑफ बर्थ एक प्रीटर्म को मैनेज करना मतलब उसकी रिससिटेशन करना is very essential, and for the resuscitation we should at least have a senior pediatrician or neonatologist for resuscitation. The resuscitation in preterms is always active resuscitation, and resuscitation में जो main बातें हैं वो हैं, एक तो we should delay the clamping of cord. This will improve the iron store, because preterms usually, जैसे हमने बात भी करी थी, कि they will precipitate iron deficiency anemia after 2 weeks of this extrauterine life, and delayed this clamping of cord will improve their iron store. And also this is known to reduce incidence of HMD, हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज़ की हमने बात करी थी, तो हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज़ के इंसिडेंस को भी डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग देखा गया है कि वो उसको रिड्यूस करता है, उसके इंसिडेंस को. देन अदर थिंग इज टेम्परेचर मेंटेनेंस. जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है प्रीटर्म्स में, दे लूज टेम्परेचर वेरी फास्ट, और हाइपोथर्मिया जो एक
बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। अगर हाइपोथर्मिया में बच्चा जाता है तो उसको रिवाइव करना मुश्किल है, और रिससिटेशन में भी जो है बहुत सक्सेसफुल नहीं होती है रिससिटेशन इफ़ वी आर नॉट एबल टू मेंटेन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर मेंटेनेंस और उसके बाद एबीसी वैसे ही रहेगा जैसे हम टर्म बेबी में डिस्कस किया है। अदर थिंग इज use of surfactant, and usually some centers advocates that if preterm or low birth weight baby is less than 1000 grams, then we should गिव सर्फेक्टेंट प्रोफाइलेक्टिकली, कि ज़रूरत नहीं भी है, अगर रिससिटेशन में प्रॉब्लम नहीं आ रही है या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में बेबी नहीं भी गया है, तब भी हम जो उसमें सर्फेक्टेंट देते हैं। अगर अगर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में है तब तो देना ही है। देन अदर जो यूनिवर्सली हम जो यूज़ करते हैं स्ट्रेटजी, इट इज़ विटामिन के, और विटामिन के 1 mg देते हैं अगर 1500 ग्राम से ऊपर है बच्चा, एंड इफ़ बेबी इज़ लेस दैन 1500 ग्राम देन वी यूज़ 0.5 मिलीग्राम विटामिन के IM। एंड देन वी विल डिसाइड द लेवल ऑफ केयर कि बेबी को कहाँ रखना है। बेबी शुड बी रूम्ड विद द मदर, लाइक अगर 35 वीक्स के आसपास का या उससे बड़ा है तो वी कैन कीप बेबी अलॉन्ग साइड मदर। एंड इफ़ बेबी रिक्वायर सम केयर, नेजोगैस्ट्रिक फीडिंग की ज़रूरत है, टेम्परेचर मेंटेन करने की ज़रूरत है, तो नर्सरी में रख सकते हैं। और बहुत ज़्यादा बड़ा प्राइमी है, IV फ्लूइड्स चाहिए या मॉनिटरिंग चाहिए, तो वी कैन शिफ्ट द बेबी इनटू NICU। और ट्रांसफ़र जो है बेबी को, प्रीटर्म बेबी शुड बी ट्रांसफर्ड बाय नर्स और डॉक्टर टू द नर्सरी और NICU। देन नर्सरी में NICU में अगर हमने रखा है, देन व्हाट टू मॉनिटर, कि क्या हमने उसमें देखना क्या क्या है, रोज़ जो है मॉनिटरिंग क्या करनी है। वी हैव टू मॉनिटर ऑल दीज थिंग्स, बट what should be the frequency of monitoring, it depends upon the condition of the that preterm baby की gestation maturity कितनी है उसकी, और वो क्लिनिकली स्टेबल है कि नहीं है, उसके हिसाब से जो है हम फ्रिक्वेंसी कि दिन में 6 बार करना है, 8 बार करना है, 10 बार करना है, कितनी बार मॉनिटरिंग करनी है, वो जो है उन चीज़ों पे डिपेंड करता है। मेनली जेस्टेशनल मैच्योरिटी पे डिपेंड करता है। और क्या क्या चीज़ें मॉनिटर करनी है, वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मॉनिटर वाइटल साइंस, ऑल द वाइटल साइंस। और वाइटल साइंस के लिए जो है यूजुअली मल्टी चैनल वाइटल साइन मॉनिटर्स आर बीइंग यूज्ड, और इनमें क्या रहता है कि दे आर नॉन इन्वेसिव मॉनिटर्स, कि हमने जो है उसको मॉनिटर पे लगा दिया, उसको लीड मॉनिटर की उसके लगा दी, एंड देन हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, ECG and all these things, temperature will be monitored, and whenever there is alteration in these vital signs कि वो जो है कम हो रहा है हार्ट रेट या बढ़ जा रहा है, तो there will be alarms, और अलार्म्स जैसे बजेगा, जिस बच्चे का बजेगा तो नर्सिंग स्टाफ तुरंत उसके पास जो है देखने के लिए जा सकता है। या बच्चा एपनिया में जा रहा है तो रेस्पिरेटरी रेट कम हो रहा है तो भी जो है उसको हम देख सकते हैं। देन अनदर थिंग टू मॉनिटर इज़ एक्टिविटी एंड बिहेवियर, कि बच्चा एक्टिव है, सुस्त है, लेथार्जिक है, बिहेव कैसे कर रहा है, तो वो चीज़ें जो हैं मॉनिटर करनी है। देन कलर जो है बहुत बड़ा इंडिकेटर रहता है, कलर से हम बहुत सारी चीज़ें जानते हैं। यूजली द कलर इज़ पिंक, एंड अगर पिंक नहीं है, पेल है, ग्रे है, देन इट ऑलवेज इंडिकेट देयर इज़ सम प्रॉब्लम ऑफ परफ्यूजन। मोस्ट ऑफ द टाइम इट मे बी इंटरनल हेमरेज, जैसे इंटरवेंट्रिकुलर हेमरेज है या पेरीवेंट्रिकुलर हेमरेज है, उनमें जो है सडनली पेल हो सकता है बेबी। देन बेबी कैन टर्न ब्लू, और ब्लू जो है यूजली इंडिकेट्स साइनोसिस। साइनोसिस के दो कॉज हो सकते हैं, रेस्पिरेटरी कॉज भी हो सकता है या कार्डियक भी हो सकता है, या फिर सिर्फ पेरिफेरल साइनोसिस है तो इट इंडिकेट दैट कोल्ड स्ट्रेस में बच्चा टेम्परेचर हाइपोथर्मिया में जा रहा है। देन कलर में और येलोइश कलर है तो एक ट्रस को इंडिकेट करता है, जॉन्डिस हो रहा है बच्चे को। देन अनदर थिंग इज टिश्यू परफ्यूजन, एंड टिश्यू परफ्यूजन जो है कैसे देखते हैं हम। टिश्यू परफ्यूजन मतलब टिश्यू तक ब्लड जो है सही से पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है, बच्चा जो है शॉक में तो नहीं जा रहा है। तो टिश्यू परफ्यूजन देखने के लिए एक तो कलर बता ही दिया कि पिंक कलर है तो टिश्यू परफ्यूजन सही है, टेम्परेचर पेरिफेरी का अच्छा है तो टिश्यू परफ्यूजन ठीक है। अगर पेल हो रहा है तो टिश्यू परफ्यूजन सही नहीं है। अदर मेथड्स जो एम्प्लॉय करते हैं हम, इट इज़ CRT, कैपिलरी रिफिल टाइम,
कैपिलरी रिफिल टाइम यूजुअली हम देखते हैं स्टर्नम पे जो है प्रेस करके स्किन को ब्लेंच करते हैं अपने फिंगर से, और देखते हैं कि जो ब्लेंच्ड स्किन है वो कितनी देर में फिर से पिंक हो जाती है। तो यूजुअली टिश्यू परफ्यूजन टाइम दिस कैपिलरी रिफिल टाइम इज़ लेस देन 2 सेकेंड, कि 2 सेकेंड के अंदर अंदर जो है जो ब्लैंच स्किन है वो फिर से पिंक हो जाएगी। बट अगर 2 सेकेंड से ज़्यादा लगा रहा है तो मतलब इट इंडिकेट टिश्यू परफ्यूजन पुअर है। बाकी टिश्यू परफ्यूजन के अदर मेथड्स जो हैं, हम यूरिन के आउटपुट देख सकते हैं, ब्लड प्रेशर देख सकते हैं, या फिर ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है, इन चीज़ों को भी देख के आइडिया लगा सकते हैं। देन अदर थिंग टू मॉनिटर इज़ फ्लूड्स मेनली जो है इनपुट आउटपुट चार्टिंग होनी चाहिए, कि कितना जो इनपुट कितना दिया, आईवी फ्लूड दे रहे हैं या नाइजोगैस्ट्रिक फीडिंग कर रहे हैं तो कितना हमने पिछले एक दिन में या पिछले 4 घंटे में 6 घंटे में कितना दिया, एंड आउटपुट कितना था यूरिन में या स्टूल में, या इनसेंसिबल लॉसेस जो हैं कितने हुए। देन इलेक्ट्रोलाइट एंड एबीजी, व्हाट इज एबीजी? एबीजी इज आर्टीरियल ब्लड गैसेस, की आर्टरी में जो ब्लड है उसमें जो गैसेस या उसका जो सोडियम, जिस सोडियम पोटासियम बाइकार्बोनेट्स जो एसिड बेस बैलेंस है वो कैसा है उसको देखते हैं, और गैसियस जो आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो चीज़ें जो है चेक की जाती हैं। और साथ में इलेक्ट्रोलाइट, तो ये भी चीज़ जो है डेली किया जा सकता है, जो नीड है उसके हिसाब से जो है कुछ दिनों में किया जा सकता है। देन comes to the other monitoring parameter is tolerance of feed, that is very important। अगर हम एनजी फीड दे रहे हैं तो उसमें क्या वो टॉलरेट कर पा रहा है फीड को या नहीं कर पा रहा है, और उसको कैसे देखेंगे कि एक तो फीड के बाद वॉमिटिंग तो नहीं हुआ, उसको गैस्ट्रिक रेजिडुअल वॉल्यूम कितना है, दूसरी बार फीड करा रहे हैं, मान लो 2 घंटे पहले हमने उसको 20 ml EVM दिया था, एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क दिया था, 2 घंटे बाद फिर से फीड करवाने गए तो रेजिडुअल वॉल्यूम मोर देन 50% अगर है तो वो इंडिकेट करता है कि जो है फीड टॉलरेट नहीं हो रही है, या फिर एब्डोमिनल डिस्टेंशन तो नहीं हो रहा है, जिसको हम जो है एब्डोमिनल सरकमफ्रेंस या एब्डोमिनल गर्थ मेजर करके देखते हैं। तो 3-4 चीज़ें जो हैं फीड को टॉलरेट करने के लिए मॉनिटर करते हैं हम, और अगर हमको लगता है कि फीड टॉलरेट नहीं है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, तो वहाँ पे सस्पेक्ट कर सकते हैं कि नेक्रोटाइजिंग एंटरकोलाइटिस जो हमने बात करी थी जीआईटी में वो हो सकता है, जिसके लिए हम जो स्टूल कराते हैं फॉर रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस, कि स्टूल में ब्लड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देन अदर थिंग फॉर मॉनिटरिंग इज वेट गेन, और वेट गेन जो है वेट गेन वेलोसिटी, रोज़ का कितना वेट गेन है, वो एक सबसे आइडियल मेथड है। अगर आपको कुछ क्लिनिकली कोई फाइंडिंग नहीं मिल रही है बट वेट गेन नहीं हो रहा है, देन देयर इज़ सम प्रॉब्लम, कि बच्चा जो है सेप्सिस में जा रहा है, सेप्टिसीमिया हो रहा है, या कुछ बच्चे में गड़बड़ है, तो वेट गेन वहाँ जो है नहीं होगा। देन अदर थिंग टू मॉनिटर इज कि कोई क्लिनिकल साइन तो नहीं है कॉम्प्लिकेशन के, कि जो भी कॉम्प्लिकेशन उसमें होती है, जैसे नेक्रोटाइजिंग एंट्रोकोलाइटिस है, या पेटेंट डक्टस आर्ट्रियोसिस है, इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज है, पैनिक अटैक हैं, जो भी हमने डिस्कस करी थी एनडी कैम में कि ये चीज़ें डेवलप कर सकती हैं, उन कॉम्प्लिकेशंस के लिए जो है हमने क्लिनिकल फाइंडिंग्स को देखते रहना है। देन कम्स कि कब हम माने कि प्रीटर्म इज़ हेल्दी, तो जब उसके वाइटल एंड ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है स्टेबल हैं, वाइटल सही आ रहे हैं, टेम्परेचर ठीक है, टेम्परेचर जो ट्रंक है वो वार्म है, और पेरिफेरीज आर रीजनेबली वार्म एज वेल एज पिंक होनी चाहिए पेरिफेरीज। साइनोज्ड हैं तो मतलब वो जो है गड़बड़ है, पेरिफेरल साइनोसिस इंडिकेट्स हाइपोथर्मिया। देन एक्टिविटी में अलर्ट है, एक्टिव है, एक्टिवली जो है जो भी चीज़ की जा रही है तो उसमें एक्टिव लुक है, इंटेंटफुल लुक है, और लुक में जो है पिंक है, हेल्दी दिखता है, और सम सेज दैट स्मेल्स हेल्दी और स्मेल्स गुड, कि स्मेल से भी जो है पता लग जाता है एक अच्छे न्यूरोटोलॉजिस्ट को, या इवन मदर जो है बता सकती है कि वो अच्छे से नहीं लग रहा है, कि सही नहीं है बच्चा। देन फीडिंग जो है टॉलरेट कर रहा है, देयर इज नो फीडिंग प्रॉब्लम्स, नो एब्डोमिनल डिस्टेंशन, और स्टेडी वेट गेन है। और वेट गेन कितना होना चाहिए? एटलीस्ट 10 to 15 ग्राम्स पर केजी पर डे अगर वेट गेन कर रहा है तो
वो इंडिकेट करता है कि सब कुछ सही है और कोई जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनके कोई क्लिनिकल फीचर्स अपीयर नहीं हुए हैं, तो मान सकते हैं कि प्रीटर्म जो है हेल्दी है, सही से ग्रो कर रहा है। तो ये बात हो गई कि क्या क्या चीज़ें हमने देखनी है प्रीटर्म में। अब बात करते हैं कि कहाँ उसको ट्रीट करना है या नर्स कहाँ करना है। तो एज सच प्रीटर्म्स क्या है कि जो टाइम से पहले आ गए हैं उनको अभी जो है यूट्रस में रहना था, बट अनफॉर्चुनेटली दे केम समवट अर्ली इनटू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो हमारा जो मेन प्रिंसिपल होना चाहिए, वी शुड प्रोवाइड इन यूट्रो मिल्यू बॉम्ब लाइक जो है स्टैंडर्ड जो इन्वायरमेंट है वो हमको प्रोवाइड करवाना चाहिए। यूट्रस लाइक तो नहीं दे सकते हैं, बट मतलब कोशिश की जानी चाहिए कि यूट्रस लाइक इन्वायरमेंट हम प्रोवाइड करा सकें। तो उसमें बेड जो है, बेड शुड बी सॉफ्ट, कुशन, कंफर्टेबल, बिकॉज यूट्रस में जो है पानी में जिस एमनियोटिक फ्लूइड में तैरता रहता है, तो वेल कुशन बेड होता है उसका यूट्रस में। तो उसी तरीके का बेड जो है सॉफ्ट और कुशन बेड जो है कंफर्टेबल बेड हम उसको प्रोवाइड कराएं। देन वी शुड अवॉइड लाइट, साउंड, हैंडलिंग एंड पेनफुल प्रोसीजर। यूट्रस में लाइट तो होती ही नहीं है, साउंड भी मिनिमल साउंड जाते हैं, हैंडलिंग कोई नहीं करता है और कोई पेनफुल प्रोसीजर्स होते नहीं हैं। तो इन चीज़ों को जो है हमको अवॉइड करना है। वार्मथ प्रोवाइड करानी है, फिजिकल वार्मथ, मेंटल वार्मथ दोनों जो है हमने देनी है उसको। टेम्परेचर मेंटेन रहना चाहिए, टेम्परेचर पे उसकी एनर्जी वेस्ट नहीं होनी चाहिए। देन एसेप्सिस, यूट्रस में लिस्ट चांस होते हैं उसको कि बाहर से कोई जो है पैथोजन उसके अंदर एंटर कर जाएं और सेप्टिसीमिया कॉज कर सके। तो एसेप्सिस जो है, एसेप्टिक इन्वायरमेंट हमको फॉलो करना है। यूट्रस में पानी में तैरता है तो स्किन से लॉस होना, इवेपोरेटिव लॉस होना तो मतलब ही नहीं है। तो यहाँ भी हमने जो इवेपोरेटिव स्किन लॉसेस मैनेज करने, और आगे हम डिस्कस करेंगे कैसे मैनेज करना है। देन ऑक्सीजन, सेफ ऑक्सीजनेशन, यूट्रस में प्लेसेंटा जो है उसको ऑक्सीजन देता है, तो यहाँ पे भी जो है एक्सेसिव ऑक्सीजन से बचना है, मेन वही है, सेफ ऑक्सीजनेशन से। देन न्यूट्रिशन, यूट्रस तो टोटल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन देता था, यहाँ एटलीस्ट पार्शियल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन विद एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क जो है हमको प्रोवाइड कराना है। और सबसे मेन जो है, जो एपनिक अटैक्स हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए वी शुड गिव rhythmic gentle tactile stimulations as well as kinesthetic stimulations like interact करना, म्यूजिक, केरेसिंग, कटलिंग, स्किन टू स्किन कांटेक्ट, ये सारी चीज़ें जो है हम करें ताकि उसको जो है एक जिसको बोलें इमोशनल टच और स्टिमुलेशन मिलता रहे। देन कम्स जो फर्स्ट है कि किस पोजीशन में हमने नर्स करना है उसको। तो पोजीशन मेनली जो है प्रोन पोजीशन इज़ प्रेफरेबल, बिकॉज इस पोजीशन में एब्डोमिनल डिस्टेंशन नहीं होता, उसको वो प्लेटस इजीली पास कर सकता है, रिस्क ऑफ एस्पिरेशन जो है वो कम हो जाता है इस पोजीशन में। एंड मोस्ट जो वैल्यूएबल थिंग है वो है कि इट इंक्रीज दिस प्रोन पोजीशन इंक्रीजेज डायनेमिक लंग कॉम्प्लियंस, और इसलिए वो इफेक्टिव वेंटिलेशन में हेल्पफुल रहता है। तो पोजीशन इज प्रोन पोजीशन। देन थर्मल कंट्रोल रखना है हमको, थर्मल कंफर्ट उसको प्रोवाइड करवाना है। तो कहाँ पे नर्स करते हैं, इसलिए प्रीटर्म्स को यूजली प्रीटर्म्स आर बीइंग नर्स्ड इन इंक्यूबेटर और प्रीवार्म्ड ओपन केयर सिस्टम की। जैसे ही डिलीवर हुआ और शिफ्ट कर रहे हैं उसको, तो जो ओपन केयर सिस्टम्स हैं वो वार्म किए हों वहाँ पे हम उसको नर्स करेंगे, सो दैट बेबी डू नॉट लूज एनी टेम्परेचर। और उसको नर्स किस टेम्परेचर पे करना है, तो थर्मोन्यूट्रल इन्वायरमेंट में करना है। थर्मोन्यूट्रल हमने क्लास में भी बात करी थी। thermoneutral temperature is temperature where there no the baby or the person is not losing any energy for मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर की, थर्मोजेनेसिस की कोई ज़रूरत जहाँ ना पड़े, चाहे वो फैट डिज़ोल्व करने की बात हो या एक्सेसिव टेम्परेचर दे दिया तो सेटिंग से हमको जो है टेम्परेचर मेंटेन करने की बात है। तो ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे हमको जो है कोई भी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी पड़ रही है टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, उस इन्वायरमेंट को थर्मोन्यूट्रल इन्वायरमेंट बोलते हैं। और थर्मोन्यूट्रल जो टेम्परेचर है डिफर्स अकॉर्डिंग टू द जेस्टेशनल मैच्योरिटी एंड बर्थ वेट ऑफ द बेबी।
कि वो 35 भी हो सकता है, 34 भी हो सकता है, 33 भी हो सकता है. It depends upon gestational maturity. Then other methods to control temperature is application of oil or liquid paraffin. तो ऑयल या लिक्विड पैराफिन जो हम अप्लाई कर सकते हैं, उससे क्या होगा कि कन्वेक्टिव और इवेपोरेटिव लॉसेस को हम जो है रिड्यूस कर सकते हैं. तो ऑयल में हम जो आयुर्वेदिक तेल जैसे बताए हैं रिससिटेशन में कि बला तेल से जो है अनुसिंचित बला तेल लेन अनुसिंचित जो है बला तेल से मसाज करने को बोला है. तो बहुत अच्छा तरीका है थर्मल रेगुलेशन के लिए. दैन इसी तरीके से जो है सेलोफेन या थिन प्लास्टिक शीट से उसको कवर कर सकते हैं कन्वेक्टिव और इवेपोरेटिव लॉसेस से बचाने के लिए. और जब बच्चा स्टेबल थोड़ा सा हो जाए तो उसको जो है परफेक्ट सीट में या प्रॉपर जो कपड़े हैं कपड़े पहना के क्लोथिंग में रख सकते हैं, या फिर कंगारू मदर केयर. जब आपके पास कोई कुछ भी नहीं है अवेलेबल तो कंगारू मदर केयर इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू मेंटेन द टेम्परेचर. तो घर भेज रहे हैं उसको तो कंगारू मदर केयर जो है उससे कराई जा सकती है मदर से. देन कम्स ऑक्सीजन थेरेपी. तो ऑक्सीजन जो है इज़ डबल एज्ड स्वॉर्ड फॉर द प्रीटर्म्स. कम हो गया तो भी प्रॉब्लम है, ज़्यादा हो गया तो भी प्रॉब्लम है. तो जुडिशियस यूज़ ऑफ ऑक्सीजन इज़ नीडेड इन प्रीटर्म. और जुडिशियस यूज़ किसको बोलेंगे कि वी हैव टू मेंटेन द ऑक्सीजन सैचुरेशन बिटवीन 85 to 95% एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन बिटवीन 60 to 80 mm ऑफ Hg. तो जैसे ही जो है 85% से नीचे ऑक्सीजन सैचुरेशन जाता है तो वी शुड यूज़ लोएस्ट एम्बियंट कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन टू मेंटेन द ऑक्सीजन सैचुरेशन बिटवीन 85 to 95 की. जैसे ही 90 से ऊपर जाने लगेगा ऑक्सीजन तो धीरे धीरे हम ऑक्सीजन विड्रॉ करने लगेंगे, और 85 से नीचे जाने लगेगा तो वी रिस्टार्ट ऑक्सीजन. बिकॉज अगर ऑक्सीजन ज़्यादा कंसनट्रेशन में देते हैं तो इट विल जनरेट फ्री रेडिकल्स एंड इट विल कॉज फ्री रेडिकल इंड्यूस्ड डैमेज, जैसे कि रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी है या ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेजिया की बात हमने की थी हैंडीकैप्स में. ऑक्सीजन थेरेपी के बाद आती है बात प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन. तो हमने स्टेप वाइज हम चल रहे हैं कि हमने पहले बात करी प्रिवेंशन की कि प्रिवेंट करेंगे, प्रीटर्म को ना आने ही नहीं देंगे, प्रिवेंट करेंगे कि यूट्रस में ही रहे हो. आता है तो उसको जो है हथियार दे के बुलाएंगे, जैसे कि लंग मैच्योरिटी के लिए उसको एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड उसकी मदर को देंगे जिससे कि लंग मैच्योर हो जाए. फिर जब आता है तो लेबर रूम में उसकी मैनेजमेंट रिससिटेशन जो है एक सीनियर न्यूट्रोलॉजिस्ट करे, और क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है उनकी बात करी. फिर लेबर रूम से हमने उसको ट्रांसफ़र किया नर्सरी या ICU में, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमने मॉनिटर करनी है उसकी बात करी हमने. मॉनिटरिंग के बाद हमने बात करी कि क्या चीज़ें उसको प्रोवाइड करनी है, किस तरीके की केयर होनी चाहिए. तो केयर में हमने बात करी कि यूट्रस जैसे प्रोवाइड करता है केयर वैसी केयर हमने उसको देनी है. और फिर उसके बाद हमने बात करी कि किस पोजीशन में नर्स करना है और इन्वायरमेंट कैसा हो कि थर्मोन्यूट्रल टेम्परेचर में हमने रखना है. और उसके बाद सबसे पहली नीड है उसकी ऑक्सीजन. जैसे आदमी की पहली नीड क्या होती है, ऑक्सीजन. ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो कुछ कुछ मिनटों में मर जाए. तो ऑक्सीजन कैसे हमने प्रोवाइड करानी है. देन बात आती है न्यूट्रिशन की. न्यूट्रिशन की हम बात अगली स्लाइड में करेंगे. उसके बाद आती है बात कि हम जो है उसको बाकी जो खतरे हैं, सबसे बड़ा खतरा क्या है उसको, एक तो टेम्परेचर हाइपोथर्मिया का है और दूसरा उसको जो है इन्फेक्शन प्रॉब्लम है. तो इन्फेक्शन जो है, इन्फेक्शन ही कॉमन कॉज ऑफ डेथ होता है प्री टर्म्स में आफ्टर फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ. हमने उसमें बात करी थी कि फर्स्ट वीक बहुत स्टॉर्मी रहता है प्री टर्म्स की लाइफ में, क्योंकि उस टाइम जितने भी हैंडीकैप्स हैं उनसे डेथ होने के चांसेस पूरे पूरे रहते हैं उसमें. और अगर वो वीक निकल गया तो उसमें फिर इन्फेक्शन के चांसेस हाई होते हैं. तो हमको इन्फेक्शन प्रिवेंट करना है. और इन्फेक्शन कैसे प्रिवेंट करना है, मिनिमम हैंडलिंग हो. प्रीटर्म्स को जितना हम टच करेंगे, जितना हमको उसको हैंडल करेंगे, प्रोसीजर्स करेंगे या बार बार देखेंगे तो उतनी है उतना जो है चांसेस ऑफ इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं. और इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए वी शुड यूज़ इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स इन द नर्सरी. और उनमें क्या क्या है कि OT लाइक स्टैंडर्ड हमारा हाइजीन का होना चाहिए. OT लाइक स्टैंडर्ड सब जानते हैं कि ऑपरेशन थिएटर में जो है देखा होगा कि एक तो एंट्री कॉमन पर्सन की एंट्री नहीं होती है ना. देन वी वियर स्पेशल क्लोथ्स जो OT गाउन्स हैं, स्लीपर्स जो हैं OT के अलग रहते हैं.
देन वी वॉश हैंड, एल्बो तक हैंड वॉश करके तब हम ओटी में जाते हैं। तो ये सारी जो भी ओटी में हम चीज़ें करते हैं, ओटी की हाउसकीपिंग रूटीन, जैसे जो फ्लोर की मॉपिंग कर रहे हैं फिनाइल से, या जो भी जितनी बार करते हैं, या बीएमडब्ल्यू डिस्पोजल है कि बायोमेडिकल वेस्ट का डिस्पोजल जो है प्रॉपर होना चाहिए वहाँ पे। और डिसइंफेक्शन ऑफ इक्विपमेंट्स, जैसे ओटी में तो हम स्टीराइल जो जो भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं कि स्टीराइल ऑटोक्लेव्ड हैं, तो यहाँ पे जो इक्विपमेंट हम ऑटोक्लेव कर सकते हैं तो उनको ऑटोक्लेव करके रखें, और जिनको नहीं कर सकते हैं उनको दूसरे तरीक़ों से जो डिसइंफेक्शन करते हैं हम उनसे हम जो डिसइंफेक्शन करके इक्विपमेंट्स डेली के डेली यूज़ करें। और उससे बड़ी बात है कि सर्विलांस करना है बैक्टीरियल फ्लोरा का। ओटी में भी होता है कि ओटी से हम जो है सैंपल भेजते हैं कि कोई बैक्टीरियल फ्लोरा जो है उसके इक्विपमेंट्स पे, उसके फ्लोर पे या उसके वॉल्स पे जो दीवारें हैं उन पे तो नहीं है। और तो रूटीन जो है कुछ कुछ दिनों में जो है वो सैम्पलिंग जाती है, और सर्जन्स को पता रहता है कि हमारी ओटी में ही पर्टिकुलर बैक्टीरियल फ्लोरा है। वैसे ही नर्सरी का भी जो है फ्लोरा की सर्विलांस होनी चाहिए कि पैथोजेनिक फ्लोरा तो नहीं आ गया है, और उसके लिए फिर अगर आता है तो उसके लिए हम फ्यूमिगेशन वगैरह जैसे ओटी में करते हैं वैसे ही यहाँ पे भी की जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो है इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, तो इन्फेक्शन में प्रिवेंट करने के लिए एक तो नर्सरी का एनवायरनमेंट जो है ओटी की तरह होना चाहिए, दूसरा बच्चे के पास कम से कम जाएँ, क्योंकि इनमें चांसेस ज़्यादा होते हैं। इंक्यूबेटर में रखते हैं, इंक्यूबेटर में हॉट ह्यूमिड इन्वायरमेंट रहता है, इम्यूनिटी इनकी ऐसी कमज़ोर रहती है, तो अगर हम पैथोजन जाए देंगे तो इनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है तो वो मैनिफेस्ट करेगा ही करेगा। तो इसलिए जो है हम कोशिश करेंगे कि हम उनको पैथोजन ना दें, और अगर मिल गया है तो अर्ली डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट की वी शुड बी विजिलेंट कि बच्चा थोड़ा सा भी हमको सुस्त लगता है, इनएक्टिव है या फीड नहीं कर रहा है, तो हम जो है सैम्पलिंग करा के, ब्लड सैम्पलिंग करा के, जो सेप्सिस स्क्रीन है उसको करा के इन्फेक्शन को जो है सर्च करें, और सर्च करके उसको डायग्नोज करके उसको मैनेज किया जाए अकॉर्डिंगली। सेप्टिसीमिया एक अलग से आप लोगों का चैप्टर है, उसमें जो है बात करेंगे, टॉपिक है उस पर डिस्कस करेंगे। देन कम्स फीडिंग एंड न्यूट्रिशन। तो फीड कराना जो है एक बहुत बड़ी बात है, हालांकि इस पर एक पूरा लेक्चर हो सकता था बट सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो इसी में हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। तो जो फीडिंग है इट डिपेंड्स ऑन बर्थ वेट एज वेल एज जेस्टेशनल एज। जैसे कि हमने बात करी थी कि जेस्टेशनल एज में क्या रहता है कि 30 to 34 वीक्स में जो है रूटिंग, सकिंग, स्वेलोइंग आ तो गए होते हैं बट कोऑर्डिनेटेड नहीं होते हैं, कोऑर्डिनेशन पुअर होता है। तो उस टाइम 30 to 32 वीक्स में तो हम स्टार्ट करते हैं गवास फीडिंग। गवास फीडिंग क्या है? नेजोगैस्ट्रिक फीडिंग। नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डाल के जो है उससे आप सिरिंज से ग्रेविटेट करने देते हैं, जो भी आपने कैलकुलेट किया है फीड का अमाउंट, यूजली जो है एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क, इसमें ईवीएम देख रहे हो तो ये एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क है कि उसकी मदर से हमने एक्सप्रेस कराया ब्रेस्ट से मिल्क, और वही मिल्क जो है हम गवाज फीडिंग से दिया। 30 to 32 वीक्स में तो गवाज फीडिंग कराते हैं, उसके 32 to 34 वीक्स में वी कैन ट्राई फॉर कटोरी स्पून, कि कटोरी स्पून से जो हम फीड कराने की कोशिश करते हैं। 34 प्लस है तो उसमें जो हम कोशिश करते हैं कि डायरेक्ट ब्रेस्ट मिल्क पे, ब्रेस्ट पे डाल के डायरेक्ट जो है ब्रेस्ट फीड कर ले। बीच में इनमें भी जो है 30 to 34 वीक्स में हम जो नॉन न्यूट्रिटिव, जिसको बोलते हैं नॉन न्यूट्रिटिव ब्रेस्ट सकिंग करवाते हैं, कि जो है फीड कर ताकि ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन भी होती रहे और बच्चे को अभ्यास, जैसे कि रिहर्सल है मैच होने से पहले जैसे हम करते हैं वैसे ही इसमें कि जो है उसको आगे को ब्रेस्ट पे ही फीड करना है तो उसको जो है अभ्यास कराया जाए। बट ऐसा अगर वो कर भी लेता है तो उसमें एग्जर्शन बहुत ज़्यादा होता है। अगर 30 वीक्स के बच्चे को आप अगर वो अच्छे से स्वेलो कर ले रहा है तब भी उसको एग्जर्शन इतना होगा कि बहुत सारी एनर्जी उसकी फीडिंग में ही चली जाएगी। जो फीड कर रहा है वो एनर्जी वो फीडिंग में वेस्ट कर देगा तो उसका वेट गेन नहीं होगा। इसलिए जो है वहाँ कोशिश की जाती है कि नॉन न्यूट्रिटिव फीडिंग थोड़ी बहुत उसको कराए और ज़्यादा से ज़्यादा उसको गवाश फीडिंग से फीड कराएं। अगर 30 वीक्स से नीचे है तो उसमें जो यूजली वी प्रेफर आईवी फ्लूइड्स, पेरेंट्रल जो न्यूट्रिशन की बात करते हैं, और उसमें डिपेंड करता है उसका वेट। वेट जो है वेट के हिसाब से उसको जो है हम डेक्सट्रोज देते हैं 10% या 5% डिपेंडिंग अपॉन द
वेट 1200 ग्राम से नीचे है या 1000 ग्राम से नीचे है, 1000 ग्राम से नीचे है तो 5%, और 1200 ग्राम से नीचे है तो 10% IV डेक्सट्रोज हम दे देते हैं उनको। और इनके अलावा सभी को जहाँ पे हम ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा रहे हैं तो ट्रॉपिक फीड जो है एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क की हम 1 to 2 ml 4 टाइम्स पर डे जो है दे सकते हैं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉम जो फर्स्ट वीक में आता है उसके जो भी बेनिफिट्स हैं वो जो है बच्चे को मिलने चाहिए, और वो अगर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में हम देते हैं तो वो प्राइमिंग कराता है, वो जीआईटी को मैच्योर कराता है, जीआईटी को डाइजेशन और मैच्योरेशन कराता है, तो वो देना बहुत ज़रूरी है। और जो गवाज फीडिंग की है जो लिखा है स्टार्ट विद 20 to 30 ml, तो गवाज फीडिंग की हमने जो क्वांटिटी लिखी है कि यूजली हम फर्स्ट डे सेकंड डे जो है जब स्टार्ट करते हैं तो 20 to 30 ml पर केजी पर डे जो है स्टार्ट की जाती है फीड, टोटल फीड का अमाउंट जिसको कि डिवाइड करके हम देते हैं। देन डेली जो है अगर टॉलरेट कर रहा है फीड तो विल इंक्रीज इट बाय 20 to 30 ml पर केजी पर डे, और एक हफ्ते में जैसे हम रोज़ रोज़ 20-20 ml बढ़ा रहे हैं पर केजी, तो जो है एक हफ्ते में 150 ml के आसपास पर केजी पर डे हो जाता है उसका फीडिंग अमाउंट। तो कब बढ़ाएंगे? जब वो टॉलरेट कर रहा है। तो लुक फॉर टॉलरेंस ऑफ फीड्स, एब्डोमिनल गर्थ और गैस्ट्रिक एस्पायरेट। गैस्ट्रिक एस्पायरेट की हमने पहले बात करी थी कि गैस्ट्रिक एस्पायरेट इज़ मोर देन 50% ऑफ द प्रीवियस फीड। मान लो हमने पिछली बार जब 15 ml दिया उसको, और अभी जो एस्पिरेट किया हमने 2 घंटे 3 घंटे में, जब हम दोबारा फीड देने जा रहे हैं तो उसमें जो है 15 ml दिया था और वो जो है 10 ml हम एस्पिरेट कर ले रहे हैं, तो इट इज़ मोर देन 50% एंड इट इंडिकेट्स कि वो टॉलरेट नहीं कर रहा है इतनी फीड। तो हम जो है सर्च करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, सेप्सिस हो रहा है या किस कारण से जो टॉलरेट नहीं कर रहा है, या फंक्शनल जो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन रहता है उसमें वैसा तो नहीं है, नेक्रोटाइजिंग एंट्रोप्लाइटिस की तरफ तो नहीं जा रहा है, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रही। ये सारी चीज़ें जो हम उसमें सर्च आउट करेंगे। तो इस तरीके से जो हम फीड कराते हैं। देन देयर कम सप्लीमेंटेशन की एज सच ब्रेस्ट मिल्क जो है इज स्पीसीज स्पेसिफिक एज वेल एज बेबी स्पेसिफिक। टर्म बेबी किसी ने डिलीवर करा है तो उसमें ब्रेस्ट मिल्क की क्वालिटी अलग होगी, प्री टर्म वाले में अलग होगी, बट फिर भी जो है बहुत सारे ह्यूमन मिल्क फोर्टिफायर, HMF क्या है? ह्यूमन मिल्क फोर्टिफायर की जो मिल्क हम दे रहे हैं उसमें कुछ चीज़ें जो हैं कम हैं प्रीटर्म के हिसाब से, तो उसको फोर्टिफाई करने के लिए ह्यूमन मिल्क फोर्टिफायर आते हैं, जो कि ये जो सारी चीज़ें लिखी हैं ये उसमें रहती हैं, और उसको फोर्टिफाई करके हम जो है अगर दे रहे हैं तो ऊपर से सप्लीमेंटेशन देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर ह्यूमन मिल्क फोर्टिफायर हम मिक्स नहीं कर रहे हैं, एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क जो हम उसको गैवाज फीडिंग में दे रहे हैं, तो हमको जो है ये बाकी चीज़ें सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें कि मल्टीविटामिन है, फॉलिक एसिड है। तो हमने बात करी थी कि फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी और आयरन डेफिशिएंसी उसको सेकंड थर्ड वीक से होनी शुरू हो जाती है, तो उसमें जो है हम मल्टीविटामिन और फॉलिक एसिड दे सकते हैं थर्ड वीक्स ऑनवर्ड्स। आयरन जो देना है वो तब देना है जब बच्चा स्टेबल जो है वेट गेन शुरू करने लग जाए। तो स्टेबल वेट गेन जो है स्टेडी वेट गेन कंटिन्यूस जो 10 to 15 ग्राम्स पर डे पर केजी पर डे है, वो अगर वो गेन करने लगे तो उसके 2-3 हफ्ते में हम आयरन शुरू कर सकते हैं, और आयरन की डोज रहेगी 2 to 3 मिलीग्राम पर केजी। और जब हम आयरन देते हैं तो विटामिन ई देना मस्ट हो जाता है, क्योंकि आयरन जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाता है, वो हमने बात करी थी उस टाइम भी हैंडीकैप्स में भी। तो विटामिन ई जो है 1 इंटरनेशनल यूनिट पर ग्राम ऑफ लिनोलिक एसिड, जो भी फार्मूला होता है उसमें लिनोलिक एसिड पड़ा होता है, तो उसमें जो है या ह्यूमन मिल्क फोर्टिफायर है तो उसमें हम एटलीस्ट विटामिन ई जो है एक इंटरनेशनल यूनिट पर ग्राम लिनोलिक एसिड के होना चाहिए। और जब आयरन दे रहे हैं तो विटामिन ई देना जो है ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आयरन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाता है, और उस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमको विटामिन ई जो कि नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है उसको देना ज़रूरी है। देन कैल्शियम फास्फोरस भी ज़रूरी होता है, क्योंकि जो है रिकेट्स डेवलप करने के चांसेस प्रीटर्म से मैंने बात करी, तो कैल्शियम फास्फोरस की जो डोज है वो लिखी हुई 220 मिलीग्राम कैल्शियम और 100 मिलीग्राम फास्फोरस जो है पर डे हमको देना रहता है। और कब तक देनी है सप्लीमेंटेशन? तो ये सप्लीमेंटेशन जब तक वो जो है टर्म तक नहीं पहुंच जाता, या फिर उसका वेट जो है
2000 ग्राम 2000 ग्राम्स नहीं हो जाता तब तक हमने इसको सप्लीमेंट करना है। लास्ट थिंग इन प्रीटर्म मैनेजमेंट इज देयर स्टिमुलेशन, जेंटल रिदमिक स्टिमुलेशन। तो जेंटल रिदमिक स्टिमुलेशन जो है बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि यूट्रस में भी जो है वो एक किस्म से पानी में तैरता रहता है, तो उसको स्टिमुलेशन मिलता रहता है। और ऐसे भी आपके कमरे में बंद कर दिया जाए, आपको खाना देते रहें, बट आपसे कोई बात ना करे, आपसे कोई इमोशनल अटैचमेंट कुछ ना हो, है ना, तो धीरे धीरे आप जो ग्रो नहीं करोगे। उसी तरीके से यहाँ भी है, दो चीज़ें जो हैं ये रिदमिक स्टिमुलेशन प्रोवाइड करती है। एक तो जो है एपनिक अटैक को प्रिवेंट करती है, एपनिक अटैक्स जो कि एक प्रीटर्म में डेथ होने का या जो कॉम्प्लिकेशंस होने का एक मेजर कॉज रहता है एपनिक अटैक्स, एक तो उसको प्रिवेंट करेगी, और दूसरा जो है इसकी इमोशनल साइकोलॉजिकल बैकअप रहेगा उसको, और उससे जो उसको उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प मिलेगी। तो वी शुड प्रोवाइड जेंटल टच, मसाज, कटलिंग, स्ट्रोकिंग और फ्लेक्सिंग इन द फॉर्म ऑफ टैक्टाइल स्टिमुलाई जो है ये चीज़ें कर सकते हैं। काइनेस्थेटिक स्टिमुलाई में जो है रॉकिंग बेड या इन्फ्लेटिंग ग्लव्स जो हैं यूज़ किए जाते हैं, कि हम जो है उसके बेड के नीचे ग्लव डाल दिया और उस ग्लव्स को जो है हमने जोड़ दिया वेंटिलेटर से, तो थोड़ी थोड़ी देर में वेंटिलेटर हवा पुश करेगा, उसमें एयर पुश होगी, तो एक किस्म से रॉकिंग बेड की तरह होगा कि वो धीरे धीरे हिलता रहेगा जो है। तो काइनेटिक जो है स्टिमुलस उसको मिलता रहेगा, बेबी को हिलाता रहेगा। और देन देयर में भी ऑडिटरी स्टिमुलाई लाइक फैमिली मेम्बर्स की साउंड रिकॉर्डेड हैं और वो बजती रहें उसके आसपास, या म्यूजिक है या हार्ट बीट्स की साउंड जो है रिकॉर्डेड हम करके उसको सुनाते रह सकते हैं। देन सम विजुअल इनपुट्स कैन बी गिवन बाय आई टू आई कॉन्टैक्ट, जब प्रीटर्म के पास जाएं और उसको देखें, उससे आई कॉन्टैक्ट बनाएं, या फिर कलर्ड ऑब्जेक्ट उसके आसपास जो हैं रखें या दिखाएं उसको, और डिफ्यूज़ लाइट में उसको रखें, बहुत ब्राइट लाइट में ना रखें। तो वो सारे जो विजुअल इनपुट्स देते हैं, और ये सारे इनपुट्स जो हैं दो तरह से हेल्प करेंगे। एक तो रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेटेड रखेंगे, अपने का अटैक्स नहीं होंगे, और दूसरा उसको जो है इमोशनल लेवल पे जो है हेल्प करेंगे और वो अच्छे से ग्रो करेगा। देन अदर थिंग इज़ मैनेजमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन। तो कॉम्प्लिकेशन में तो यही है कि जल्दी से जल्दी हम जो है प्रॉम्प्ट डायग्नोसिस ऑफ कॉम्प्लिकेशन शुड बी देयर। फोटोथेरेपी बहुत ज़रूरी है उसमें, अर्ली फोटोथेरेपी। जैसे अगर हम मानते हैं कि प्रीटर्म में हमको 15 पे फोटोथेरेपी शुरू करनी है, सॉरी अगर टर्म में हमने 15 ग्राम मिलीग्राम पर डेसीलीटर बिलीरुबिन पे जो है फोटोथेरेपी शुरू करनी है, तो प्री टर्म्स में वी शुड स्टार्ट एटलीस्ट ऑन 12 और 10, कि अर्ली देना है, क्योंकि दे आर एट हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग कर्नेक्टरस ड्यू टू पुअरली डेवलप्ड ब्लड ब्रेन बैरियर। तो वहाँ पे फोटोथेरेपी अर्ली यूज़ करना है। एंटीबायोटिक्स का यूज जो है, कई बोलते हैं कि प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक की दे आर एट हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग सेप्टिसिमिया, देन वी शुड गिव प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स। बट प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स जो हैं नहीं यूज करनी चाहिए, क्योंकि एक्सक्रीशन उनका कॉम्प्रोमाइज रहता है। रीनल और हेपेटिक जो फंक्शन है दे आर कॉम्प्रोमाइज्ड, दैट्स वाई एंटीबायोटिक्स शुड ओनली बी यूज्ड इन सेप्टिसिमिया, जहाँ ज़रूरत है वहीं देना है। देयर शुड बी ओनली जुडिशियस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंड इन लो डोजेस। एंटीबायोटिक जो है लो डोज में यूज़ करनी है, सो दैट एंटीबायोटिक्स के जो है टॉक्सिक इफेक्ट्स उनमें ना हो। देन इम्यूनाइजेशन। तो इम्यूनाइजेशन में जो है वी कैन वैक्सीनेट प्रीटर्म्स लाइक टर्म बेबीज़, उनकी तरह ही कर सकते हैं। बट एनआईसीयू में रिस्क नहीं है वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ का होने का, दैट्स वाई 0 डे वैक्सीन कैन बी गिवन एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज। कहाँ पे जो है पहले देते हैं, इफ़ मदर इज़ हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव, देन हेपेटाइटिस बी वैक्सीन एज वेल एज इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो देनी है, दे शुड बी गिवन विद इन 72 आवर्स ऑफ द एज, की पहले 3 दिन में जो है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन और एज वेल एज इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है दें। लाइव वैक्सीन्स टू बी अवॉइडेड इन सिम्टोमेटिक HIV पॉजिटिव पेशेंट। अगर इन्फेंट जो न्यू प्रीटर्म है, अगर वो HIV पॉजिटिव है और सिम्टम्स हैं, तो उसमें लाइव वैक्सीन जो है नहीं देनी है। जैसे पोलियो वैक्सीन लाइव आती है, तो इस तरह की वैक्सीन जो है हमने उसमें नहीं देनी है। दैन इन्फेंट टू डिस्चार्ज अ प्रीटर्म,
तो प्रीटर्म तब डिस्चार्ज करना चाहिए जब उसकी मदर जो है मेंटली प्रिपेयर्ड है और ट्रेंड है एक प्रीटर्म को हैंडल करने के लिए घर में, जैसे कि कैसे उसको फीड कराना है, कैसे कैसे उसको एसेप्टिक कंडीशन में रखना है और कैसे उसका टेम्परेचर मेंटेन करना है, कैंगरू मदर केयर प्रोवाइड करा सके। और फीड कराना जो है सबसे ज़रूरी है कि कटोरी स्पून से कराना है या फिर ब्रेस्ट जो फीडिंग है वो सीख गया है प्रीटर्म और मदर एबल है कराने के लिए, तभी जो है हम उसको डिस्चार्ज करें। दूसरा जो पॉइंट है वो है बेबी इज़ एबल टू मेंटेन टेम्परेचर, कि बेबी जो है टेम्परेचर मेंटेन कर सके। ऐसा नहीं है कि जैसे हम करते कैसे करते हैं उसको कि नर्सरी में या जहाँ भी है इंक्यूबेटर में रखा है तो पहले तो 12 घंटे 24 घंटे जो है इंक्यूबेटर ऑफ करके रख देंगे कि ऑफ इंक्यूबेटर में क्या वो टेम्परेचर मेंटेन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। अगर मेंटेन कर पा रहा है तो उसको जो है फिर बिना इंक्यूबेटर के नर्सरी में रखेंगे या मदर के साइड जो है लॉन्ग साइड मदर हॉस्पिटल में एक दिन रखेंगे, फिर भी वो मेंटेन कर ले रहा है टेम्परेचर, देन वी विल डिस्चार्ज द बेबी इफ़ अदर कंडीशंस आर बीइंग फुलफिल्ड। एबल टू फीड कर ले रहा है खुद से, है ना, गैबाज फीडिंग की जरूरत नहीं है। स्टडी वेट गेन ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वेट गेन होना चाहिए। अगर वेट गेन नहीं हो रहा है तो वी शुड नॉट डिस्चार्ज द प्रीटर्म। और होम कंडीशन सेटिस्फैक्ट्री कोई नहीं देखता इंडिया में, बट ऐसा कि घर की कंडीशंस जो हैं सेटिस्फैक्ट्री हों, घर में अलग से एक रूम हो जहाँ पे मदर और प्रीटर्म रह सके और जहाँ उसका टेम्परेचर मेंटेन हो सके, एसेप्सिस मेंटेन हो सके। जैसे कि आजकल कोरोना में है कि होम क्वारंटीन उनको किया जाए जहाँ पे उनके पास होम क्वारंटीन की फैसिलिटी है, वैसे ही यहाँ पे होम कंडीशन जो है सेटिस्फैक्ट्री होनी चाहिए। देन कम्स इट्स प्रोग्नोसिस। क्लास बहुत लंबी होगी, अपलोड करने में हो सकता है मुश्किल हो जाए। तो प्रोग्नोसिस जो है, प्रोग्नोसिस अक्सर जो है पेरेंट्स पूछते हैं कि प्रीटर्म हुआ है, 30 हफ्ते पे हुआ है, 32 हफ्ते पे हुआ है, तो क्या होगा आगे, भविष्य कैसा होगा हमारे बच्चे का। तो यूजली प्रोग्नोसिस गुड इफ बेबी हैव नॉट सफर्ड एनी बर्थ एस्फिक्सिया, एपनिक अटैक्स, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरबिलिरुबिनेमिया, जो भी मतलब कॉम्प्लिकेशंस है अगर उसने सफ़र नहीं करी हैं तो प्रोग्नोसिस सही रहता है। and they usually catch up their term counterparts by 1 to 2 years of the age in term of growth and development। कि यूजली जैसे पहले बात करी थी कि प्री टर्म्स जो हैं उनके माइलस्टोन डिलेड रहते हैं टर्म से। जो टर्म टर्म अब कोई 30 हफ्ते पैदा हुआ, कोई 40 हफ्ते पैदा हुआ, पहले ही जो है 2-2.5 महीना छोटा है, तो जो जो 2.5 महीने पे टर्म जो है सोशल स्माइल या आपका कोइंग करने लगता है, वो प्री टर्म हो सकता है 3.5 पे 4 पे करे, क्योंकि वो पहले ही छोटा है। तो बट टर्म को कैच कर लेगा और 2 इयर्स पे 18 महीने से 2 साल के बीच में जो वो सारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल पैरामीटर टर्म के बराबर अचीव कर लेगा। बट फिर भी प्री टर्म्स में देर आर 15 to 20% चांसेस ऑफ डेवलपिंग सेरेब्रल palsy, सीजर्स, हाइड्रोसेफेलस, blindness, mental retardation, deafness, and usually these complications are in those preterms who have suffered birth asphyxia और apneic attacks और respiratory problem जिनको रहती है, तो यूजली एनॉक्सिक इंसल्ट के कारण जो है ये प्रॉब्लम्स उनमें होती हैं। बट देर इज़ अ वेरी हाई इंसिडेंस ऑफ माइनर न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटीज़ लाइक लैंग्वेज डिले है या लैंग्वेज डेवलपमेंट की प्रॉब्लम्स हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है, बिहेवियरल डिसऑर्डर्स हैं, ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर हैं। तो इन जो ब्रेन की जो माइनर जिनको बोलते हैं न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटीज़ हैं, उनको उनके होने के चांसेस जो है प्री टर्म्स में बहुत हाई रहते हैं। बहुत सारे बड़ी बड़ी हस्तियों के नाम हैं प्री टर्म्स में जिनका नाम लिया जाता है, जैसे न्यूटन थे, विंस्टन चर्चिल थे, पिकासो थे। तो these all are born either low birth weight or they are born as preterm, और फिर भी उन्होंने दुनिया में अपना जो है नाम किया, सब उनका नाम जानते हैं। तो ऐसा नहीं है कि प्रोग्नोसिस इज़ बैड। कुछ कंडीशंस हैं जहाँ प्रोग्नोसिस बैड हो सकता है, अदरवाइज़ प्रोग्नोसिस गुड भी हो सकता है। बट ये प्रोग्नोसिस के लिए जो है हमको विजिलेंट रहना है। फॉलोअप्स की हमने बात नहीं की, फॉलोअप जो है पे रखना है प्रीटर्म को। ऐसा नहीं है कि एक बार उसको डिस्चार्ज कर दिया तो बुलाना नहीं है वापस। तो फॉलोअप जो है रेगुलर फॉलोअप उसका होता रहे, और रेगुलर फॉलोअप में जो हम यूजली जो फॉलोअप किसके लिए बुलाते हैं, हम इम्यूनाइजेशन के लिए बुलाते हैं। बट प्रीटर्म्स में हम देखेंगे कि कोई प्रॉब्लम जो जो उसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं
ऑक्सीजन की जैसे रेटिनोपैथी और प्रीमैच्योरिटी वगैरह तो नहीं हुआ है, ग्रोथ सही से कर रहा है, उसका वेट गेन सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हियरिंग में प्रॉब्लम तो नहीं है, या जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ या डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स की बात है उनको असेस करने के लिए हमको फॉलोअप में उसको बुलाते रहना चाहिए। तो दिस वाज ऑल अबाउट प्रीटर्म, प्रीटर्म के हैंडीकैप्स और मैनेजमेंट की हमने बात करी। और जहाँ तक आयुर्वेद की बात करें, आयुर्वेद हम ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, हमने रिससिटेशन वाला पार्ट भी आयुर्वेद का नहीं पढ़ा है क्योंकि भरत सर ने जो है उसकी स्लाइड्स दे दी हैं और वो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो जहाँ तक प्रीटर्म के आयुर्वेद की पार्ट की बात आती है तो आयुर्वेद में ज़्यादा कहीं है नहीं प्रीटर्म का। हरित ने एक जगह दिया है कि असमय जो है अकाले जो गर्भ उत्पन्न होता है वो यूजली वात के कारण होता है। तो उसकी कॉजेटिव फैक्टर माना है कि वात के कारण जब वात जो है गर्भिणी में बढ़ जाएगा तो अकाल प्रसव हो सकता है। तो अकाल प्रसव मतलब बिफोर जो है टर्म जेस्टेशन होना। बट प्रीटर्म के फीचर्स उन्होंने डिस्क्राइब नहीं किए हैं। बट जब हम इटियोलॉजी जान रहे हैं कि प्रीटर्म्स आर यूजली ड्यू टू वाइशिएशन ऑफ वात दोष, देन वी शुड ट्रीट द प्रीटर्म विद ऑल द मेजर्स टू स्पेसिफाई द वात। तो जैसे अभ्यंग करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो जो हम इनोवेटिव आइडियाज़ इसमें प्रीटर्म मैनेजमेंट में कर सकते हैं। बट क्लास बहुत लेंथी हो रही है तो आपके सजेशंस, फीडबैक्स, क्वेरीज जो हैं इनवाइटेड हैं। एंड थैंक यू ऑल।